Hello students. So till now we have completed chapter number 1, chapter number 2, chapter number 3, and chapter number 4 is the chapter which is of practical and theory also. Yes, so first we have to complete all the theory chapter, then we are going to see और हम उसको बहुत ऊपर ऊपर से या आउटलाइन सिर्फ देखेंगे चैप्टर्स की, दैट इज़ जो हमारे सिर्फ प्रैक्टिकल रिलेटेड पार्ट होगा उसको ही हम स्टडी करेंगे फ्रॉम दिस प्रैक्टिकल एंड थ्योरी chapters. Yes, so chapter 4 animal kingdom animalia is practical with theory. Yes, so today we are going to start this chapter, that is the cell structure and organization. Yes, so today we are going to start our new chapter, that is the cell structure and organization. Yes, so the cell structure. So as we know that the cell is the structural or the functional unit of our life. Yes, सेल ही जो है वो क्या है, हमारी जो बॉडी को है वो बना रहा है. यस, इट इज़ लाइक कि जिस तरह से एक ब्रिक होता है, इट इज़ fully made the building. Likewise our cell is made one by joining the cell they are making the body. Yes, so as cell make the tissues make the organ makes the body. Yes, so this is how our body is become complex. So in this chapter we are going to see some concept or some things about the cells. We are going to see the detailed organization and the structure of the cell. Here, what is cell, who discovered the cell, then what are the different theories which are come regarding the cell. Yes, then what different types of cell के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. We are going to see the prokaryotic cell and the eukaryotic cell, एंड इन द यूकैरियोटिक सेल वन बाय वन हम उसके ऑर्गेनाइजेशन और उसमें मिलने वाले डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो हैं उनके बारे में हम डिटेल स्टडी यहाँ पे हम करने वाले हैं. यस, सो इट इज़ वन ऑफ द गुड एंड वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर. यस, सम ऑफ द बेसिक थिंग्स जो है वो आपको ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में पता रहती है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द जूनियर क्लासेज ऑल्सो. यस, so now we are going to start that the cell structure and organization. Yes, so as we know the cell is the structural and functional unit of the body, and study of cell is called as the cytology. It is called as the cytology. Yes, then cell biology. Cell biology is also a branch of biology which deal with the molecular and the functional aspect of the cell. Yes, then he was the Robert Hooke who discovered the cell. अगर हम बात करते हैं कि सेल को किसने डिस्कवर किया है, सो ही इज द रॉबर्ट हुक. यस, सी the Robert Hooke in 1665, he also called as the father of cytology. He also called as the father of cytology. Yes, उन्होंने इस जो अपनी डिस्कवरी थी उसके बारे में माइक्रोग्राफिया बुक जो है उसमें उन्होंने इस बात को लिखा है. यस, देन मॉडर्न साइटोलॉजी इज गिवन बाय द स्वानसन. यस, देन दिस इज ओनली फॉर कि आपको अगर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है. इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर 12th क्लास. यस, सो अगर हम डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर बात करते हैं तो इट इज़ द रॉबर्ट हुक. यस, ही इज़ द पायोनियर ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. यस, अब अगर हम नॉर्मली जब बात करते हैं सेल की तो सेल हैज़ कि हाउ इट इज़ वेरी मच स्मॉल, वी आर नॉट, हम उनको नहीं देख पाते हैं. यस, वी आर नॉट एबल टू सी द सेल. यस, अगर हम देखेंगे द to study the cell we require the microscope, and the microscope may be simple microscope and the compound microscope. Earlier it was found that the microscope बने that is the simple microscope जिसमें हम we are able to magnify the object 50 to 100 times. Later on it was the
compound microscope which is discovered and it gave 100 times more clarity. yes. उसके बाद अगर हमें सेल के ऑर्गेनल्स की अगर उनकी स्टडी करनी है तो नाउ वी हैव द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. yes. so earlier it is the simple microscope, उसके बाद फिर compound microscope. in the laboratory we are using the compound microscope. yes. और उसके बाद अगर और उसका अगर हमें मैग्निफिकेशन करना है देन वी से कि इट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. yes. so in the cell we see कि हम उस अगर सेल की बात करें तो इट हैज़ वेरी मच डिफरेंट स्ट्रक्चर. या तो वो स्पेरिकल हो सकते हैं, या तो वो ओवल शेप के हो सकते हैं, वो कॉनिकल हो सकते हैं, ट्राइगोनल हो सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप आपको सेल के हैं वो देखने मिलेंगे. यस. सो इफ़ वी सी कि अगर हम उनकी हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो इट वाज द रॉबर्ट हू डिस्कवर्ड द सेल. एंड अगर हम बात करते हैं सेल, सो इट इज़ द डेड सेल. यस. डेड सेल. उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक कॉक लिया. कॉक इन द सेंस इट इज, जब आप कोई फ्लास्क लेते हो, फ्लास्क के ऊपर आपको इस तरह से ये कॉक दिखता है जो उसको क्लोज करके रखता है. यस. दिस इज द फ्लास्क और इसको आपने ये क्लोज करके ये कॉक रखा है. यस. so he took one of the layer of this cork and he observed under the microscope. what he observed that the cork has some दिस कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर. यस. ये इस तरह से एक कंपार्टमेंट, एक रूम की तरह अब उनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो एक जैसे थे सारे. यस. ये उन्होंने क्या देखा कि इट इज मेड अप ऑफ द सुबेराइज सेल वॉल. वो किससे बने हो, सुबेरिन से बने हुए हैं. यस. एंड जो सेल है ये वर्ड कहाँ से आया है, सो इट इज द लैटिन वर्ड दैट इज द सेला, जहाँ से क्या बना, सेल बना. और इसका मतलब होता है लिटिल रूम और हॉलो स्पेस. यस. इट इज लिटिल रूम और अ हॉलो स्पेस, जिसका दिस इज, सबसे पहले उन्होंने रॉबर्ट हुक ने ये देखा. और रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की दैट इज और द डेड सेल. वो कैसा सेल था, डेड सेल था. यस. ए डेड सेल in the year 1665. Yes. Robert Hooke. Yes. In 1665 he discovered a dead cell in the cork which have the room-like structure or the little room-like structure, which are also called as a compartment-like structure. And from there he found that this structure is repeatedly खुद को क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है. यस. और इसके जो सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ सुबेरिन. यस. एंड दिस सेल इज द सेल वर्ड जो आया है इट इज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज द सेला. और सेला का मतलब होता है लिटिल रूम और हॉलो स्पेस. यस. सो इसीलिए सेल को इसीलिए नाम दिया गया है सेल. यस. Later on, it was the scientist in 1676 that is Anton von Leeuwenhoek. Yes, he was the scientist who discovered the living cell. उन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया, लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया. यस. दे हैव गुड काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप जिसके कारण दे हैव डिस्कवर्ड द लिविंग सेल. सो देर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सेल किसने डिस्कवर्ड किया, नॉर्मल इसमें भी अगर हमसे पूछते हैं कि सेल किसने डिस्कवर किया, तो वी सिंपली सेड कि इट वाज द रॉबर्ट हुक. यस. बट लेटर ऑन अगर कोई ऐसा पूछता है आपसे हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, सो इट इज द एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल. यस. सो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट वाइल्ड एनिमलक्यूल्स को भी डिस्कवर्ड किया, लाइक आरबीसी, स्पर्म, देन प्रोटोजोआ, जिसको उन्होंने अपनी बुक द सीक्रेट ऑफ नेचर में उन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है. यस. देन अ साइंटिस्ट, उसके बाद दो साइंटिस्ट आए दैट इज द सेल्डन एंड स्वान. The Selden, he is the German scientist. He was the botanist, and the Swan is the zoologist from the Britain.
ही जॉइंटली, दोनों ने क्या किया, जॉइंटली एक थेरी को प्रपोज की. दैट थेरी इज कॉल्ड एज द सेल थेरी. दैट थेरी यू कॉल्ड एज द सेल थेरी. यस, ये सेल थेरी ने क्या प्रपोज किया, उन्होंने क्या कहा, सेल्डन एंड स्वॉन ने क्या कहा, दे said the cell is the structural and functional unit of life. उन्होंने क्या कहा कि जो सेल है ये structural and functional unit of our life है. They said that the cell is the structural and functional unit of life. Yes, it is said by the Selden and Swan in year 1839. Yes, ये ईयर जो है वो मे बी चेंज हो सकता है, बुक में अलग, ये अलग. यस, सो लेटर ऑन द अनदर साइंटिस्ट नेम एज द रुडोल्फ वर्शियो. यस, रुडोल्फ वर्शियो हु डिस्कवर्ड, उन्होंने उस चीज़ को और आगे लेके गए, उसको और मॉडिफाइड किया, सेल थ्योरी को और मॉडिफाइड किया, एंड दैट सेल थ्योरी इज कॉल्ड एज द मॉडर्न सेल थ्योरी. जिन्होंने ये कहा, यहाँ पे सिर्फ क्या कहा गया था सेल थ्योरी में कि जो सेल है वो हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब ये हमारा एक मूलभूत, मतलब लाइफ का एक बेसिक नीड है. यस, दैट इज द सेल. बट रोडोल्फ वर्च्यू ने क्या कहा, दैट द ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. क्या कहा उन्होंने, द ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो सेल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, ये ऑलरेडी जो पहले सेल्स रहते हैं उसके सेल डिवीजन के बाद ही क्या होते हैं, सेल आते हैं. सो उन्होंने एक फ्रेज कहा, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला. यस, उसका मीनिंग ये होता है ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. यस, ओमनिस सेलुला ई सेलुला. आपको एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि who gave किसने ये phrase दिया. So it is the Rudolf Virchow who gave this, that all cell arise from the pre-existing cell. Yes, it is the extension of the cell theory. मतलब cell theory जो सेल्डन और सॉन ने दी थी, जिस थेरी में उन्होंने सिर्फ कहा था कि जो सेल है ये हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, उसको और आगे एक्सटेंड लेके गए. कौन, इट वाज द Rudolf Virchow who said that the all cell arise from the pre-existing cell. Yes, and उसके बाद उन्होंने कुछ मॉडर्न थेरी के जो स्टेटमेंट्स दिए, दैट इज ऑल नाउ इट इज कॉल्ड एज द मॉडर्न सेल थेरी. उसके कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, उसके कुछ पॉइंट्स दिए, दैट वी विल सी इन द बुक्स, जो हम अपनी बुक से देखने वाले हैं. यस, हम अपनी बुक से भी हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट जो पॉइंट्स और पॉस्टुलेट्स जो उन्होंने दिए मॉडर्न सेल थ्योरी से. यस, उसके पहले हम देखते हैं, देयर इज अनदर साइंटिस्ट नेम एज रॉबर्ट ब्राउन हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. यस, अब जो सेल थ्योरी आई थी, जो सेल थ्योरी के जो पॉस्टुलेट्स है उससे कुछ एक्सेप्शंस भी थे, जैसे वायरसेस, आरबीसीज. वायरसेस एक उसका पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर नहीं होता है. यस, देन आरबीसीज की अगर बात करते तो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता. प्रोकैरियोट्स की बात करते तो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. यस, सो दीज आर सम एक्सेप्शन. यस, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी कैसे कैसे उन चीज़ों की डिस्कवरी हुई. यस, सो सी इन द बुक. सो सेल इज द कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life for all living organism capable of independent existence and can perform all the function of life. Yes, cell is the structural and functional unit of life of all living organism. Yes, capable of independent existence. हम खुद अपने आप capable individual रहने के लिए. Yes, and can perform all the function of life. To see cell clearly we need a microscope. Yes, we cannot see by our naked eyes. किसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती, we need the microscope. Larger cell can see through the simple microscope, but to see smaller cell we require the compound microscope. Simple microscope से आप जो है बड़े सब्सटेंसेस को या बड़े सेल्स को देख सकते हैं,
but for the small cell you require the compound microscope. Yes, a simple microscope can magnify image 50 to 100 times, but a compound microscope can do so 1000 times or more. Yes, in the laboratory we are using the compound microscope. Yes, when we have the practical session you can, हम जो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व करते हैं. यस, so in the microscope we use uh, in the microscope we use in the laboratory a beam of light is used to make the thing visible, hence it is the light microscope. Yes, हम क्या करते हैं, हम एक नॉब होता है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे ये दिस इज द प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म पे हम स्लाइड रखते हैं या कोई भी स्लाइड या कोई भी चीज़ रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, एंड फ्रॉम हियर द लाइट विल रिफ्लेक्ट, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होने के कारण वी कैन एबल टू सी द सेल फ्रॉम दिस. यहाँ से हम ऑब्जेक्ट, ये दिस आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, और ये यहाँ से हम इजीली इसको देख सकते हैं. यस, सो दिस इज द सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप. यस, सो अगर हम बात करें तो सिंपल, पहले जो सिंपल माइक्रोस्कोप जो छोटे सेल्स होते हैं वी आर वो उनके लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, और जो बड़े सेल्स हैं उनके लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं. यस, दिस इज द माइक्रोस्कोप ऑफ द लिवोनहॉक. यस, टू जो यहाँ पे एक लाइन थी उसके लिए मैंने आपको डायग्राम बताया है कि इन द माइक्रोस्कोप वी यूज in the laboratory a beam of light is used to make the things visible, hence it is light microscope. Yes, to see interior of cell we need the electron microscope. अगर हमें सेल के अंदर देखना है so we need the electron microscope. It can magnify the image 5 lakh times. Yes, ये क्या कर रहा है, उसकी इमेज को कितना मैग्नीफाई करता है, 5 lakh टाइम्स से वो मैग्नीफाई करता है. यस, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट आपको सेल साइजेस दिए हुए हैं. यस, 0.1 नैनोमीटर दैट इज़ एन एटम. और अगर हम एक सिंपल एक बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं सो इट इज़ ऑफ 1 माइक्रोमीटर. यस, उसके छोटे और कितनी सारी चीज़ें होती है, देखिए लिपिड्स, प्रोटीन, फ्लू, वायरस. यस, और अगर हम एक बैक्टीरिया का बात करते हैं तो बैक्टीरिया से और बड़ा क्या हो सकता है, इट इज़ द रेड ब्लड सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, पोलन और अ फ्रॉग एग. यस, सो दिस इज डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेल्स दिखाई दे रहे हैं. यस, इट मे बी स्मॉल और इट मे बी बिग डिपेंडिंग अपॉन द उनके साइज़ के ऊपर से हम उनके जो माइक्रोस्कोप है उससे हम देख सकते हैं. यस, अब ये जो सेल है, सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को अगर हमें ऑब्जर्व करने हैं, उनको देखने हैं, तो वी रिक्वायर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. यस, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. यस, द सेल्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सो देयर आर नो टिपिकल शेप ऑफ अ सेल. यस, हम कोई भी एक सेल का एक टिपिकल शेप नहीं बोल सकते हैं. सेल में बी स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, फ्लैटेंड, पॉलीगोनल, ओवल, ट्राइंगुलर, कोनिकल और कॉल्यूमनर. यस, डिफरेंट टाइप्स के आपको सेल दिखाई देंगे. हमारे बॉडी पार्ट्स में यू विल सी कि 200 टाइप्स के हमें अलग अलग सेल्स अलग अलग जगह पे दिखाई देंगे. यस, सो इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, या जहाँ पे वो रह रहे हैं उसका साइज क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा. यस, the size vary greatly in various plants and animals. Some of them are not visible to naked eyes, some are barely visible, while some are macroscopic. Yes, macro means they are micro, वो easily देख सकते हैं हम, they are macroscopic. Yes, the smallest cell size can be seen in mycoplasma, that is of 0.3 micrometer in length. Bacterial cell size is 3 to 5 micrometer, while the largest cell size of cell is seen in the ostrich egg, that is nearly 15 centimeter, and longest cell is the nerve cell. जो हमारे सबसे बड़ी सेल होती है हमारे नर्वस सिस्टम में, नर्व सेल होती है. दिस इज द लॉन्गेस्ट. यस, लार्जेस्ट अगर हम बात करते हैं इट इज़ द ऑस्ट्रिच एग. यस, देन स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो इट इज़ द माइकोप्लाज्मा.
So these are the different types of, ये this part is also important regarding your competitive exam MCQs. Yes, you already know that the cell theory was proposed by the Swan and Seldon. Yes, however, in this theory, there was no explanation about फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल. उन्होंने सिर्फ क्या बताया था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. यस, स्वॉन एंड सेल्डन ने. लेटर ऑन ही इट वाज द Rudolf Virchow who explained for the first time that the new cell are formed by the cell division from the pre-existing cell. Yes, इन्होंने बताया कि जो सेल बन रहा है इट इज फॉर्म फ्रॉम द by the cell division from the pre-existing cell, that is the omnis cellula e cellula. Yes, उसका मीनिंग होता है the cell formed from the by the cell division from pre-existing cell. Yes, so in later years, advanced research in the cytology lead to the modification in the cell theory, which is known as the modern cell theory. Yes, and here the postulates of the modern cell theory. यहाँ पे उसके different postulates दिए हुए हैं. Yes, उसके points दिए हुए हैं. That all the living organism are made up of cell. सारी चीजें किससे बनी हुई हैं? They are made up of cell. The living cell arise from the pre-existing cell. वो अपने आप कहीं से आसमान से अपने आप टूट के नहीं गिरा है, ये पहले से ही कोई सेल मौजूद था जिससे वो सेल डिवाइड होके सेल बना है. A cell is the structural and functional unit of life. Yes, the total activity of cell are responsible for the activity of organism. Yes, अगर एक सिंगल सेल अगर प्रॉपरली वर्क करेगा, उसी तरह से सारे सेल अगर प्रॉपरली वर्क करेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी भी अच्छे से होगी. यस, सो सेल की ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी किस पे डिपेंड है? इट इज डिपेंड अपॉन द सेल की एक्टिविटी पे. यस, तो total activity of cell are responsible for the activity of an organism. Cells show transformation of energy. Yes, यहाँ पे क्या हो रहा है? Transformation of energy हो रही है. Yes, cells contain nucleic acid, या तो उनमें DNA, RNA in the nucleus and cytoplasm. Yes, so these are the main postulates of the modern cell theory. This will, ये आपको आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट postulates ऑफ द मॉडर्न सेल थ्योरी. यस, सो दीज आर द 6 points you have to write. Yes, it can be asked for 2 marks. Yes, so this is about the postulates of the modern cell theory, जिसमें हमने पढ़ा पहले स्वॉन और सेल्डन आए, उन्होंने दे गिव द सेल थ्योरी, और उसके बाद रेडॉल्फ वर्च्यू आए जिन्होंने क्या बताया कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, और उसके बाद जो है एक पूरा डिफरेंट postulates बनाए गए इन द मॉडर्न सेल थ्योरी. यस, सो दीज आर द डिफरेंट postulates ऑफ दिस मॉडर्न सेल थ्योरी. यस, नाउ वन ऑफ द कैपेसिटी जो सेल की एक बहुत अच्छी कैपेसिटी है, दैट इज द टोटिपोटेंसी. Totipotency is the capacity of a cell of an individual cell to give a total organism. ये इसका गुड एग्जाम्पल हमको कहाँ देखने मिलता है? इन द प्लांट टिश्यू कल्चर, इन विच वी आर टेकिंग द सेल, और एक सेल से हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट को रीजनरेट करते हैं. यस, it is the capacity or the potential of a living nucleate cell to differentiate and divide to form many other types of cell and thereby a complete new organism. Yes, अगर हम अपने खुद इंसानों की अगर बात करें, सो अगर देखते हैं तो इनिशियली जब जाइगोट बनता है, जाइगोट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल. यस, जाइगोट के बाद धीरे धीरे उसमें फिर से क्या होते जाता है? सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवाइड होने के बाद देर इज़ अ सर्टन एज एक आती है, जिसके बाद क्या होता है? देर इज़ अ एक ऐसी स्टेज आएगी, लाइक ये जाइगोट फॉर्म हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये 2 सेल मिलके जाइगोट फॉर्म हो रहा है, जाइगोट के बाद फिर से उसमें डिवीजन हो रहा है, फिर से टेट्राइड बन रहा है, फिर से वो डिवीजन होके 8 सेल बनेगा, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, लाइकवाइज उसमें डिवीजन जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा. यस, सो क्या होगा उसके बाद ये एक जैसे अपने जैसे सेल बना रहे हैं. यस, आफ्टर सम टाइम द सेल विल डिफ्रेंशिएट मतलब कुछ सेल जो है वो अलग काम में लग जाएंगे, कुछ सेल अलग काम में, कुछ सेल अलग काम में. लाइक कुछ जो हमारा ब्रेन बनाएगा, यस,
कुछ जो है हमारा दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएगा, कुछ जो है हमारा हार्ट से रिलेटेड सेल्स बनाएंगे। यस, सो जो पहले जो सेल्स थे वो कैसे थे, अनडिफरेंशिएटेड सेल थे। अनडिफरेंशिएटेड मतलब अलग नहीं किया गया था उन्हें, वो सब एक जैसे सेल थे। सो दे कॉल्ड एज द अनडिफरेंशिएटेड सेल। नाउ द सेल बिकम डिफरेंशिएटेड आफ्टर सम टाइम। जब बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसके हाथ बन रहे हैं, पैर बन रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं, बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं। सो इन दैट केस क्या हो रहा है, एक सेल जो है वो ब्रेन का ही पार्ट बनाने में अपने आप को पूरा एनर्जी लगा देगा, कुछ सेल जो है हार्ट का पार्ट बनाने में ही पूरी अपनी एनर्जी लगा देगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दे विल डिफरेंशिएट। लाइक अभी आप 10 तक अपना खुद एक जैसा सिलेबस सब कुछ पढ़ रहे थे, सो टिल 10th यू आर अनडिफरेंशिएटेड, आप खुद को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे। बट नाउ इन 11th एंड 12th जहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं, नाउ यू कैन से कि मैंने एक मैथ्स लिया है और मैंने बायो लिया है और मैंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। यस, तो हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वी कैन डिफ्रेंशिएट कि हम यहाँ पे किसी ने कॉमर्स लिया है, किसी ने आर्ट्स लिया है। सो डिपेंडिंग अपॉन दी कि हम 10th के तक हम कैसे थे, वी आर अनडिफ्रेंशिएटेड। यस, और उसके बाद we become differentiated। like here जो सेल्स है, सेल्स में कैपेसिटी होती है कि एक सेल जो है, मतलब अगर हम नॉर्मल अगर बात करते हैं, जो हम ह्यूमन चाइल्ड की अगर बात करें या दूसरे चाइल्ड की बात करें, सो वो 2 सेल के कॉम्बिनेशन से जाइगोट बना रहा है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद इट विल फॉर्म अ फुल, एक पूरा एक बच्चा बन के तैयार हो जाता है हमारे यहाँ। यस, सो इट इज क्या हो रहा है, the cell has the capacity to form a full organism। yes, so it is the capacity, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, टोटिपोटेंसी। yes, अब ये तो एक सेल की बात हो गई जिसमें दे हैव द प्रॉपर्टी, इसमें मदर एंड फादर का जेनेटिक मटेरियल था। यस, बट अगर हम उसके बाद भी अगर हम एक सिंगल सेल लेते हैं, लाइक दैट इज कॉल्ड एज द स्टेम सेल, दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी कि अगर हम उसको प्रॉपर मीडियम दे तो हम इसको भी एक पूरी तरह से एक उसमें से फुल ऑर्गेनिज्म डेवलप तैयार हो सकता है। यस, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द टिश्यू कल्चर। अगर हम टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर में भी हम यही करते हैं। अगर हम बनाना टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक पूरा बनाना ट्री का जो ट्रंक होता है उसको लेके आएंगे। वी आर गोइंग टू कट दैट इनटू डिफरेंट पार्ट्स और उसके बाद उसको धोएंगे, स्टरलाइज करेंगे प्रॉपर तरीके से और उसके टुकड़े टुकड़े बनाएंगे और वो टुकड़ों को डिफरेंट फ्लास्क में, जिसमें मीडियम हो, और वो मीडियम में हम वो पीसेस को रखेंगे। यस, उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड हो रहा है। सो इट इज़ दे हैव द एबिलिटी कि ये जो कुछ सेल्स है, दे हैव द एबिलिटी कि दे फॉर्म्स द प्लांट, रूट्स भी बना सकते हैं और प्लांट भी बना सकते हैं। मतलब हम एक जो बनाना जो प्लांट था उसका जो एक तना था, उससे हमने क्या किया, बहुत सारे हम उसके टुकड़े करके हम उसके डिफरेंट क्या कर सकते हैं, प्लांटलेट तैयार कर सकते हैं। और ये हम प्लांटलेट हम बेच सकते हैं, हम जो आप बोल सकते हैं फार्मर्स हैं उनको इजीली हम ये दे सकते हैं। मतलब आप सोचिए कि एक ही बनाना प्लांट से वी आर एबल टू फॉर्म 200 और 300 हम इसमें से पेड़ जो है वो निकाल सकते हैं। यस, सो इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ सेल to divide capacity of a cell or the potential of a living cell to differentiate and to divide to form any other types of cell and thereby form a complete new organism. That is the property called as the totipotency. Yes, a cell is totipotent because it has the entire genetic information। ये क्यों रहता है, क्योंकि हर सेल में न्यूक्लियस रहेगा और हर न्यूक्लियस में क्या रहेगा, they contain the genetic material। yes, and this genetic material of an organism, they have the ability to carry all the information। yes,
So the cell is totipotent because of it has the entire genetic information of the organism in its nucleus. Embryonic animal cell are totipotent and termed as stem cell, and the stem cell have a great medical application including क्योर फॉर डिसीज. यस, अगर हम बात करें स्टेम सेल, दे हैव द कैपेसिटी कि वो पूरा हमारा एक ऑर्गन को ही हम तैयार कर सकते हैं उसमें. अगर किसी के पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, दे हैव द कैपेसिटी कि वो पैनक्रिया को स्टेम सेल से हम अपना पैनक्रिया को डेवलप कर सकते हैं. यस, सो इट इज़ द कैपेसिटी. तो ये जो कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड एज द टोटिपोटेंसी. यस, सो ये जो इन चीज़ों पे अभी स्टडी चल रही है, हम इस पे कंटिन्यू वर्क हो रहा है. यस, लाइकवाइज अभी अगर हम आप कई बार टीवी में भी ऐड देखते हो कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर आप जब एक लाइफ सेल का वगैरह ऐड आता है जिसमें जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जो नाड़ होता है, उसको काट लिया जाता है और उसमें से जो स्टेम सेल है उसको स्टोर करके रखा जाता है फॉर द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड. अगर चाइल्ड को आगे चल के कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, सो एट दैट टाइम दे कैन यूज दैट स्टेम सेल एंड दिस स्टेम सेल हैज़ द एबिलिटी कि उस चीज़ को वो क्योर कर सकते हैं. यस, सो इट इज़, ये अभी बहुत डेवलप है, या आप बोल सकते हैं इट इज़ इन द डेवलपिंग स्टेज. ये जो टेक्निक है इट इज़ इन द डेवलपिंग स्टेज, ये डेवलप हो रही है. यस, सो this is the property of a cell, that is the totipotency. Yes, in the next class we will see the kinds of cell, in which first the prokaryotic cell we have to discuss, and later on we have discussed the eukaryotic cell. Yes, so see you in the next class. Goodbye.